Dear learner, in this video, we shall study about the key points of the chapter Motion Class 9. Solution of in-text and exercises question in a very simple way, as I have already derived three equations of linear motion in my previous video. Now, I am telling you what, how, and where to apply these equation. Let's start with first equation of motion, that is V equal to U plus AT. The physical quantity V is known as final velocity, U initial velocity, A acceleration and T is time taken. जब भी आपको न्यूमेरिकल में इससे रिलेटेड कोई तीन बातें बताई हूँ और फोर्थ वन यू हैव टू कैलकुलेटेड, देन यू विल यूज दिस इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी. जब आपको एक्सीलरेशन निकालना है, देन यू विल राइट v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू a. Whenever you have to find time taken, then you will write v minus u upon a equal to t. So, लीनियर मोशन जब हो रहा है, जब कोई बॉडी स्टार्ट करती है मूविंग फ्रॉम द रेस्ट, देन ऑलवेज टेकन इनिशियल वेलोसिटी u equal to 0. But when sometimes brakes are applied on moving body and comes at rest, then the final velocity always be 0. Second equation, that is s equal to ut plus half at square. This is position time relation. The physical quantity represented by s is distance or displacement, u is initial velocity, t time taken, a acceleration. तो जब भी आपको डिस्टेंस का वर्ड निकालना हो, उसमें टाइम दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, देन यू विल यूज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. नेक्स्ट, v square minus u square equal to 2as. Here v is final velocity, u is initial velocity and a is acceleration, s is known as distance and displacement. This is also known as velocity position relation. जब कोई ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो इट्स हैज समथिंग इनिशियल वेलोसिटी, बट व्हेन इट विल रीच एट अ certain height, its final velocity will be 0. When we drop any object or a body in the downward direction, then the body has its initial velocity 0, but its final velocity will be maximum. And when a body is thrown vertically upward direction, that time the acceleration will be in negative. जो a है, a की वैल्यू इस केस में जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, a की वैल्यू आपने नेगेटिव में रखनी है, और जब डाउनवर्ड में आएगी तो a की वैल्यू पॉजिटिव में रखनी है. नाउ वी कम इन पेज नंबर 100, that is first question, an object has moved through a distance, can it have zero displacement? अब कोई बॉडी मूव करी है, क्या इसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? वेलोसिटी तो किसी भी वेलोसिटी से चल रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, और उसके बाद कह रही है क्या इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ये जीरो हो सकती है? तो इसका आंसर आएगा यस. यस ऑफ कोर्स. कैसे? एन ऑब्जेक्ट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट व्हेन it has moved through a distance
This happened when a final velocity or the final position of the object coincide with its original position or the initial position. यानी जहाँ से कोई पर्सन मूव करना स्टार्ट करता है और कुछ टाइम के बाद सेम उसी पॉइंट पर आ जाता है, दैट टाइम वी विल से द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, but it has some distance covered, but displacement will be zero. Next, a farmer moves along a boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from its initial position? So, for this answer, we can see the figure. This is a square field. Its side is 10 meter. So, the perimeter of square is 4 into side, then 4 into 10, that is we get 40 meter. Farmer moves along the boundary in 40 seconds. जबकि टोटल टाइम कितना लगा, दैट इज 2 मिनट 20 सेकेंड. अब हम इसे सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं. देन 2 इंटू 60 प्लस 20, दैट वी गेट 120 प्लस 20 वी गेट 140 सेकेंड. तो टोटल टाइम टेकन हो गया 140 सेकेंड. नाउ नंबर ऑफ राउंड, देखो पूरा टाइम है 140 और वन राउंड को जो टाइम लगता है दैट इज 40 सेकेंड. सो नंबर ऑफ राउंड इक्वल टू टोटल टाइम टेकन अपॉन टाइम टेकन इन वन राउंड. टोटल टाइम अपॉन टाइम टेकन इन वन राउंड. सो 140 डिवाइड बाय 40, देन वी गेट 3.5 rounds. When farmers start moving from point A, after 3 complete and 1/2 round, then reach at point C. So in a square field, when he completed 3 round and in half round he will reach at C. So displacement after 2 minutes and 20 seconds will be CA, because the displacement is the shortest distance between final position and initial position, that is CA in this square field. And the square field CA is a diagonal in a right triangle ABC. AC square equal to AB square plus BC square according to Pythagoras theorem. So diagonal AC equal to square root AB square plus BC square. अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं. AB की वैल्यू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट, देन वी गेट रूट 100 प्लस 100 रूट 200 एंड 200 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया. देन डायगोनल AC इक्वल टू 10 रूट 2 और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41. So we will multiply it by 1.414, then we get 14.14 meter. So displacement after 2 minutes and 20 seconds will be 14.14 minute. Next question, which of the following is true for displacement? So it can be 0. Its magnitude is greater than the distance traveled by the body. So the statement, both statement are false here. First statement में है कि displacement can be 0. Yes, it can be 0 because suppose कर लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर फील्ड है और ये बॉडी जो है इस पोजीशन से मूव करना शुरू करती है. कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम इट रीच एट दिस पॉइंट एंड अगेन continuously moving, or in last it reach its
ओरिजिनल पोजीशन, जहाँ से इसने स्टार्ट किया था चलना वहीं पर पहुंच गया, दैट टाइम वी कैन से इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। तो ये नहीं कह सकते हैं कैन नॉट ज़ीरो। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो false because displacement is less than or equal to distance traveled by the object। इक्वल भी हो सकता है और उससे कम हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड velocity। The differences between speed and velocity is as follows. Speed and velocity. In speed is the distance traveled by an object in a given interval of time. Velocity is the displacement of an object in a given interval of time. So, जो स्पीड है उसका रिलेशन डिस्टेंस से है और जो वेलोसिटी है उसका रिलेशन डिस्प्लेसमेंट से है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, वाइल वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, that is it has only magnitude, while the velocity is vector quantity because it has both magnitude as well as direction. So this is the difference between speed and velocity. Under what conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? अब स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल कब होती हैं, ये क्वेश्चन है। देन कंडीशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन in a particular direction. Like this, you can see an object, that is object move in a particular direction and reach at here. This is the linear motion and rectilinear और curvilinear भी इसमें हो सकता है। Next, what does the odometer of an automobile measure? The odometer of an automobile measures the distance traveled by a vehicle। हर व्हीकल के साथ ये लगा होता है, आपने देखा होगा। ये इसके जो अपर साइड में जो ये आप निडल इसमें देख रहे हो, तो इट टेल्स किलोमीटर पर आवर दिस स्पीड, एंड जो डिजिटल मीटर लगा नीचे दिस टेल्स अस द हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। तो दिस इज नोन एज ओडोमीटर। और केवल स्पीड बताने के लिए जो होता है उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड से कंसर्न है एंड ओडोमीटर कंसर्न विद डिस्टेंस कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? इन यूनिफॉर्म मोशन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट can be a straight line like this, and the body move in a straight line, curve line, and this curve line the body move like this, and in a circle it can have any shape. This is because in uniform motion the speed is constant, the direction of motion may change like this in circle। सर्कल में क्या होता है, हर पॉइंट पर हम जब मूव कर रहे होते हैं, हर पॉइंट पर जितने पॉइंट सर्कल को बना रहे हैं उस पॉइंट पर हमको ईच पॉइंट पर जो है डायरेक्शन चेंज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेस रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes। तो क्वेश्चन बता दिया, टाइम टेकन इज 5 minutes। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप from the ground station? तो here we have to calculate distance, कितनी distance से cover किया। if the speed of the signal is that is equal to light and equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, raised to power 8 है ये,
3 into 10 to raise power 8 meter per second, not 101, 8. Yes. So the speed of signal equal to 3 into 10 to raise power 8 meter per second. टाइम टेकन बाय सिग्नल 5 मिनट, तो 5 मिनट को हम पहले क्या करेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, देन 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, देन 5 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स. तो टाइम टेकन बाय द सिग्नल दैट इज 300 सेकेंड. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम है 300 सेकेंड्स. इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट 3 इंटू 3 9, और यहाँ 8 था 10⁻, और 100 की 2 और 0 बढ़ गई, इट विल बिकम 9 इंटू 10⁻10 मीटर. डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है. फिर से इसको ध्यान से देखो, 3 इंटू 10⁸ इंटू 300, जो 100 की 2 जीरो हैं उनने इसके पावर को, एक्सपोनेंट को इंक्रीज कर दिया, 10⁻10 हो गया और 339 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन आपको पढ़ा है, क्या होता है एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म कब होगा, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. वेलोसिटी डिक्रीज और इंक्रीज with equal interval of time. A body is said to be non-uniform. This is simple define. Of the acceleration, the rate of change of its velocity is not constant. Means equal velocity, unequal time interval time, or unequal velocities in equal interval of time, then you can say non-uniform acceleration. A bus decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. तो पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, तब हम अपने माइंड में सोचते हैं कि हमें कौन सा डेरिवेशन इक्वेशन लगाना है, लीनियर इक्वेशन लगाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी चेक, स्पीड इज 80 किलोमीटर, दिस इज गिवन इन फर्स्ट, सो इट इज इनिशियल वेलोसिटी 80 km/h. सो राइट डाउन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस इक्वल टू 80 km/h. अब आर है और टाइम गिवन है 5 सेकेंड में, इस करके हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. सो 80 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60 सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल कर दी, देन वी गेट 200 अपॉन 9 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 22.22 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, फाइनल स्पीड ऑफ द बस, जो कि ब्रेक लगाने के बाद ये डिक्रीज हो गई है, दैट इज 60 km/h. इसको भी हम चेंज करते हैं, तो 60,000 अपॉन 60 इंटू 60 सेकेंड, दैट वी गेट 50 अपॉन 3 seconds, दैट इज इक्वल टू 16.66 मीटर पर सेकेंड. ये केवल इसमें आपको 1000 और 60 से मल्टीप्लाई करके बताया. नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सीधे इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. वेन एवर यू हैव टू कन्वर्ट km/h into meter per second, then you will multiply the value with 5/18. It will ultimately convert into meter per second. So time taken by bus t equal to 5 second given है. Then acceleration, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा था v - u
अपॉन टी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब इनकी वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, 16.66 माइनस 22.22 अपॉन 5, दैट वी गेट माइनस, ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, माइनस it is 5.56 upon 5, then we get minus 1.112 meter per second square, because it is acceleration, तो its unit is meter per second square या रेज़ टू पावर -2। ये पावर माइनस में क्यों हो जाती है? बिकॉज इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। Now, a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attain a speed 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. तो ये किस क्वांटिटी से एक्सिलरेट हो रही है, ये आपको फाइंड करना है। जैसे इसमें बता रखा है कि जो ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन से अभी मूव करना स्टार्ट करेगी। जब स्टार्ट करती है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन u = 0। जब भी कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो 0 होगी। यू कैन सी रेलवे ट्रैक पर अभी ट्रेन जो है खड़ी है, तो इट्स वेलोसिटी विल बी 0। देन फाइनल वेलोसिटी जो इसने अटेन करना है वो आपको फाइंड करना है, नहीं सॉरी, ये इसमें गिवन है कि ये 10 मिनट में 40 मीटर पर आवर की स्पीड से चल जाता है। तो इसको हम पहले चेंज करते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। सो 40 × 5/18, जैसे आपको ऊपर बताया था कि अब आप जब भी किलोमीटर पर आवर होगा उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बिकम 200/18। 200/18 से 18 से 200 को डिवाइड किया, देन वी गेट 11.11 मीटर पर सेकेंड। So time taken equal to 60 into 10 मिनट थे, that is equal to 600 सेकेंड। Acceleration A equal to V minus U upon T, final velocity minus initial velocity upon T, then we get 11.11 minus 0/600, क्योंकि जो है ये इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। देन 11.11, इसमें से हमने 2 प्लेस डेसिमल हटा दिए इसके, देन वी गेट 11/600 या 11/600 60,000, ये 60,000 होगा, 2 प्लेस 0 और लगे इसमें। सो अब इसको हम जब डिवाइड करते हैं और 4 प्लेस डेसिमल लगा देते हैं, देन वी गेट 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे। सो एक्सीलरेशन इक्वल टू 1.85 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाते हैं तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 2 प्लेस डेसिमल हम जो है डिस्प्लेस करते हैं, एंड it will become 1.85 into 10⁻²² meter per second square. Now, what is the nature of a distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? So, uniform motion क्या होता है? Equal distance covered in equal interval of time. So, when a motion of is uniform, the distance time graph is a straight line with a slope. तो आपने क्या कर देखना है कि इसमें पहले आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है जिसे टाइम एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन लगानी है वाई एक्सिस कहते हैं, दिस इज डिस्टेंस। तो जब भी मोशन वाली बात आएगी इट विल बी शोन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और जब एक्सेलरेशन आएगा तो उसमें आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम में वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, दिस लाइन रिप्रेजेंटेड द यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट, व्हेन अ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये कर्व लाइन हो सकती है और भी कई तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो आप। तो पहले आप इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, दैट इज टाइम एक्सिस, और एक्स एक्सिस भी कहते हैं, वर्टिकल लाइन दैट इज डिस्टेंस,
एंड यू कैन ड्रॉ लाइक दिस लाइन। इसमें क्या हो रहा है कि इसकी स्पीड जो है नीचे से बढ़ के ऊपर की ओर जा रही है, सो ये करते हैं स्पीड डिक्रीज। ऊपर जाने के बाद अब कम होने जा रही है, तो यह है स्पीड डिक्रीजिंग। पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज होगी। और इसको हम और भी ग्राफ से दिखा सकते हैं लाइक दिस। ये जब ऊपर को जोर जाएगा सीधे, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ये जो है हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और जिगजैग लाइन भी दिखा सकते हैं। दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to its time axis? Very important. अब टाइम एक्सिस के साथ, दिस इज टाइम एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन है। और अब जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो ग्राफ है दिस इज द पैरेलल टू टाइम एक्सिस लाइक दिस, सो वी कैन से बॉडी इज एट रेस्ट। टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस डिस्टेंस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रीच कर रहा था उसी पॉइंट पर स्टैंड कर रहा है। टाइम बढ़ता जा रहा है और लेकिन ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस कवर नहीं चेंज हो रहा है, इस करके वी कैन से द बॉडी इज एट रेस्ट। व्हेन कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड time graph is a straight line parallel to the time axis? So this is the uniformly motion like this. ये constant, यह है velocity टाइम में, तो आप इसमें क्या कहोगे, या velocity टाइम या speed टाइम, this is constant velocity। इसकी velocity जिस वेलोसिटी पर मूव कर रहा है लाइक 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, उसी स्पीड से ये मूव कर रहा है। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड ना डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है। दैट टाइम वी विल से दिस इज द कांस्टेंट वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है आपको एमसीक्यू के बेस पर भी जो है आपको बताया हुआ है। सो दिस इज द एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट लाइक दिस। हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर हमने एक वर्टिकल लाइन लगाई। दिस शोज वेलोसिटी एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन शोज टाइम एक्सिस और द एक्स एक्सिस। अब इसमें हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जो पहले कोई बॉडी मूव कर रही है, एक्सिलरेट हो रही है, एक्सिलरेशन है, देन इट मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, देन डी एक्सिलरेट हो रही है और एट आफ्टर सम टाइम इट रीच एट जीरो वेलोसिटी। सो वी गेट अ फिगर हैविंग one triangle, one rectangle and other triangle. So how much distance covered by the body? We can calculate the area of these three figure. Area of triangle, half base into height. Area of rectangle, length into base and breadth, and right triangle, half base into altitude. इसे फाइंड करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। Now a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired and the distance traveled. तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्या लिखा है। द बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से मूव करी है तो इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल जीरो, बट इट्स गिवन हियर acceleration is 0.1 meter per second square. So time taken that is 2 minute. पहले 2 मिनट को हम चेंज कर देते हैं, that is 2 into 60 that is equal to 120 second. Now speed acquired जो हमको निकालना है that will be question mark and the initial velocity जैसे आपको बताया that is 0. So अब यहाँ पर हमने देखना है कि हमें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है। a दे रखा है हमको, t दे रखा है हमको u दे रखा है और v हमको निकालना है। तो तीन इक्वेशन है हमारे पास। एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, बट हेयर गिवन a, t and u, so we can find
with the help of v equal to u plus at. So using it, v equal to initial velocity is 0 plus acceleration is 0.1 into time is 120. अब पॉइंट हटाया 1/10 हो गया and we get the 12 meter per second. Velocity unit is meter per second. 0 से 0 cancel, 12 is 12, तो 12 meter per second. Now distance traveled. अब इस फॉर्मूले में कहीं भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है. डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो यहाँ पर हमें टाइम से टाइम वाला भी निकाल सकते हैं, दोनों फॉर्मूले से एक को हम लगा सकते हैं. देन वी कैन यूज द फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमने देखा अभी 12 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 0.1 इंटू डिस्टेंस कवर्ड s. तो 12 144 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 144 इक्वल टू 1 is 2 0.2 इंटू s डिस्टेंस ट्रेवल्ड. अब 0.2 को हम ट्रांसपोजिंग करते हैं, देन वी गेट 144 अपॉन 0.2 दैट बिकम s एंड s इक्वल टू एक प्लेस डेसिमल हटा करके ऊपर 0 लगा दिया, इट बिकम 1440 यानी 1440 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू s यानी डिस्टेंस कवर्ड, और इसका हाफ कर देंगे दैट इज 720 मीटर. सो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 720 मीटर.